Now in our structural analysis 1, today we are going to see our next method is Macaulay method, most important method. Previous video we saw double integration method and some example based on it. So today we are going to see next topic, next method, Macaulay's method, very most important method. So what is Macaulay's method? The problem of deflections in a beam are bit tedious and laborious, especially when a beam is subject to a point load or in a general discontinuous loads. Mr. W.H. Macaulay devised a method, a continuous expression for bending moment and integration it in such a way that the constant of integration are valid for all the section of the from section to section. ठीक है. So in Macaulay's method क्या कहा गया है Macaulay's method के अंदर बीम के अंदर लोड आएगा, लोड की वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा. वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? आर बी टेडियस एंड लुबेरियस, डिफ़िकल्ट रहेगा. कब होगा? जब स्पेशली वैन बी सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड और जनरल डिसकंटिन्यूस लोड. पॉइंट लोड होगा और कई बार डिसकंटिन्यूस लोड की वजह से बीम के लोडिंग के अंदर डिफ्लेक्शन के अंदर बी टेडियस एंड लुबेरियस मोमेंट जनरेट होगी. So at that time Mr. W.H. Macaulay devised a method. At that time Macaulay ने एक मेथड डिराइव की, a continuous expression for a bending moment and integrated it in a such a way that the constant of integration are valid for all the section of the beam even though the law of bending moment varies from section to section. So the following rules are observed while using Macaulay's method. ठीक है. So there are some term and condition about Macaulay's method. So first is always take origin on the structural length of the beam. ठीक है. क्या करना है? बीम का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. एट दैट टाइम ओरिजिन कहाँ से कंसिडर करना? एक्सट्रीम लेफ्ट. ठीक है. लेफ्ट बीम के जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहाँ से हमें कंसिडर करना है origin of the beam. Take left clockwise moment as a positive and left anti-clockwise moment is negative. ठीक है. लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगी तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगी तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. सो इट इज़ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ Macaulay's मेथड. देन थर्ड इज while calculating the slope and deflection it is convenient to use the value first in terms of kilonewton and meter. ठीक है. जब आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे एट दैट टाइम जो वैल्यू होगी वो हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे किलोन्यूटन आ मीटर में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे. देन आफ्टर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 एंड C2 आर रिटर्न इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस एक्सप्रेशन. ठीक है. देन आफ्टर हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन C1 C2 रिटर्न करेंगे फर्स्ट पार्ट में. ठीक है. इट इज़ कंटिन्यूस एक्सप्रेशन. The quantity x minus a should be integrated as x minus a whole square by 2 and not as x square by 2 in minus ax. ठीक है. अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस वन अपन n प्लस वन ऐसे रहेगा. सो एट दैट टाइम जो वैल्यू होगी क्वांटिटी x माइनस ए तो उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे. जो उसका आंसर आएगा वो हम कैसे रिटर्न करेंगे? x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स. ठीक है. ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो इट इज़ सम टर्म एंड कंडीशन ऑफ Macaulay's मेथड. देन नेक्स्ट इज क्वांटिटी x माइनस ए शुड बी रिटर्न इज x माइनस ए रेस टू 0 व्हेन इट इज डिस्टेंस टू बी मल्टीप्लाई विथ मोमेंट. फॉर एनी टर्म व्हेन x माइनस ए लेस देन 0 it is negative, the term is neglected.
ठीक है. So here it is the some rules or some term and condition about Macaulay's method. चलो next is example on Macaulay's method. The first example is given. Calculate deflections under the load for a beam loaded as shown in figure. So here beam AB is given. So from point A, point C, 12 kilonewton point load is acting on it. From C to D, 8 kilonewton load acting on it. Span AC 3 meter, span CD 6.5 meter, span DB 4.5 meter. ठीक है. सो कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन अंडर द लोड फॉर अ बीम शोवन इन फिगर. टेक E इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, आई इक्वल टू 160 10⁶ mm⁴. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए को कंसिडर करके हमें मोमेंट लेना है. सो पॉइंट ए को हमें फिक्स करना है. देन आफ्टर मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. सो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 3 प्लस 6.5 प्लस 4.5, सो इट इज़ 14. सो आर बी इंटू 14 इक्वल टू डाउनवर्ड. अब कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, 12 कितने डिस्टेंस पे 3 मीटर पर, 12 इंटू 3 प्लस 8 कितना डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है 3 प्लस 6.5, सो इट इज़ 9.5. सो आर बी इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन. ठीक है. अब आर बी मिल गया. अब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड. सो वी हैव ऑल्सो नो द टोटल लोड ऑफ दी बीम. सो इट इज़ 12 प्लस 8, सो इट इज़ 20. सो आर ए इज इक्वल टू 20 माइनस आर बी हमें अभी फाइंड आउट किया, इट इज़ -8. सो आर ए इक्वल टू 12 किलो न्यूटन. आर ए इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन. चलो अब हमें पॉइंट कंसिडर करना है एक्स पॉइंट. बट मैकॉलेस मेथड में कहा गया है कि ऑलवेज टेक ओरिजिन इज एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बीम. ठीक है. एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बीम, बीम की जो लेफ्ट है वहाँ से हमें ओरिजिन कंसिडर करना है. सो एम एक्स मोमेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस -12 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 8 x माइनस 9.5. ठीक है. एम एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस पॉइंट लोड 12 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है x माइनस 3. आर ए हमें कितना मिला 12 माइनस 8 x माइनस 9.5. बट वी नो डेट ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपन dx square equal to minus mx. So put the value of mx. So mx is equal to minus 12x plus 12x minus 3 plus 8x minus 9.5. चलो अब इंटीग्रेशन करना है. सिंपली वी नो डैट. ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर. सो इट्स बिकम ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 इज कॉन्स्टेंट. x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1. नाउ नेक्स्ट प्लस 12 x माइनस 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 x माइनस 9.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. वंस अगेन इंटीग्रेशन. सो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज बिकम माइनस 6x स्क्वायर प्लस c1 प्लस 6x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9.5 स्क्वायर. इट इज़ स्लो. अब इंटीग्रेशन वंस अगेन. सो ई आई डी आई बाई डी एस इज बिकम ई आई इंटू वाई. 6x स्क्वायर बिकम 6x क्यूब बाई 3 प्लस c1x प्लस c2 कॉन्स्टेंट प्लस 6x माइनस 3 स्क्वायर इज बिकम 6x माइनस 3 क्यूब बाई 3 plus 4x minus 9.5 raised to 3 by 3. So ei into y is equal to
माइनस 2x³ प्लस c1x प्लस c2 प्लस 2x-3 प्लस 4/3 x-9.5 इट इज़ डिफ्लेक्शन. नाउ अब हमें अप्लाई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है. सो एट व्हेन x इक्वल टू 0 also y इक्वल टू 0, so put x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 0. So from equation 2 negative terms, neglecting negative terms, so and when x equal to 15 y equal to 0, so 0 is equal to 2. चलो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ठीक है. तो c1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इट इज़ 193.17. व्हेन x इक्वल टू 14 at that time y equal to also 0, so put x equal to 14 and y equal to 0. So ei into dy by dx minus 6x square plus 193.17, it is value of c1, plus 6x minus 3 square plus 4x minus 9.5 square is slope. Then next ei into y minus 2x³ plus 193.17x plus 2x minus 3 cube plus 4/3 x minus 9.5 cube, it is deflection. For deflection at C, substitute x equal to 3, so ei into yc equal to minus 2 3 cube plus 193.17 multiplied by 3 plus 0. So ei into yc is equal to 525.51. So yc is equal to 525.51 upon ei kilonewton into meter cube. So yc equal to 525.51 10 raised to 12 upon 200 multiplied by 10 cube multiplied by 160 multiplied by 10 raised to 6, so it is 16.4 mm. For deflection at D, substitute x equal to 9.5 in equation. So ei into yd is equal to minus 2 9.5 cube plus 193.17 in bracket 9.5 plus 2 into 9.5 minus 3 square plus 0. So yd is equal to 669.61 divided by ei kilonewton meter cube. So yd is become 20.9. Put the value of E and I. So finally simplified it, yd is equal to 20.9 mm. ठीक है. तो ये हुआ मैकॉलिस मेथड, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इजी मेथड टू फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. ठीक है. तो सम टर्म एंड कंडीशन याद रखो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन एग्जांपल है उसके लिए आर ए एंड आर बी रिएक्शन फाइंड करो. ठीक है. देन हमें एम एक्स फाइंड आउट करना है. एम एक्स फाइंड आउट करने के बाद एम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर. देन इंटीग्रेशन करेंगे. फर्स्ट इंटीग्रेशन से स्लोप मिलेगा, सेकंड इंटीग्रेशन से डिफ्लेक्शन, दोनों मिल जाएंगे. देन आफ्टर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे एट द टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी. वो कांस्टेंट की वैल्यू हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पुट करेंगे. ठीक है. देन फाइनली हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. ठीक है. सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर अ बीम. चलो फिर से एक बार हम टर्म एंड कंडीशन मैकॉलिस मेथड की रिपीट करेंगे. सो फर्स्ट इज ऑलवेज टेक ओरिजिन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बीम. Take left clockwise moment as positive and left anti-clockwise moment as negative. While calculating the slope and deflection, it is convenient to use the value first in term of kilonewton and meter. The constant of integration C1 and C2 are written in the first part of the continuous expression. The quantity x minus a should be integrated as x minus a square by 2, not as a x square by 2 minus ax.
quantity x minus a should be written as x minus a raised to 0 when it is distance to be multiplied with moment. For any term when x minus is less than 0 negative, the term is neglected. ठीक है. So it is some term and condition about Macaulay's method.